Okay, students, can you see the textbook on the screen? Yes. Okay, actually, you all have the textbook in the hard copy. Some 2 or 3 students were still not purchased. This is only for them. You can refer to the textbook. And hard words meaning you all can write in the textbook itself with pencil. And those who are not having the textbook, you write it, you note it down somewhere, and as soon as you get the textbook, you will copy it. Or else you can continue in your classwork also. Okay, now the chapter we had already started yesterday that the Britishers who were traders first and now they are rulers. So as soon as they started their rule in India, what were the effects? Indian farmers, Indian kings, Indian agriculture, Indian society, how were they affected because of the British rule? That we are going to learn in this chapter. Okay, and we had already started looking at the effect on the peasants. Peasants meaning farmers. Yes, we learned that now Britishers got the right to collect revenue from the farmers. अभी kings revenue collect नहीं करते हैं, direct Britishers करते, especially from Bengal, Bihar and Orissa. Okay, and the rate of revenue was continuously increased day by the Britishers, and the condition of the farmers, the condition of the peasants started becoming poorer and poorer because first the revenue was increasing, second the production was decreasing, they sold their jewelry, they started taking money from the money lenders, and finally they had to sell their land, they had to leave their land and go away, and this is how the agriculture suffered. Okay, the same topic we are continuing. See the last paragraph of your page. Governor General Lord Cornwallis enforced Permanent Settlement Act. Enforce means he started, he introduced. So write the next meaning, underline enforced. Enforce meaning introduced. Okay, now when Lord Cornwallis became the Governor General, he started a new policy. He started a new plan. उन्होंने एक रूल बना दिया. The name of the rule was Permanent Settlement Act. Okay, now what is this Permanent Settlement Act? Let us see. Now you can come to know the word permanent. What do you mean by the word permanent? Yes. Permanent means something which change. Okay? Something which does not change, which is fixed, is known as permanent. So here what is said that Governor General Lord Cornwallis enforced or introduced the Permanent Settlement Act in order to collect revenue. अब उनका main aim क्या था? To get more and more tax. Okay, you already know what is tax, what is revenue. Yes. So the Britishers now they were planning to increase their income, increase their wealth. And to increase this wealth, to increase this income, Cornwallis started a new act. Now let us see what is this act. As per this act, the company fixed the revenue on an annual basis. Fixed the revenue. Permanent मतलब fix वो तो अभी हमने learn किया, right? So whether a farmer is having a very big land or a small land, whether the land is fertile or it is semi-fertile or it is barren, whatever it is, at the end of the year, आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा permanent. It is fixed. So obviously, Britishers को तो fix हो गया कि हर साल इतना revenue मिलेगा. अब farmers को problem, production है कि नहीं है, ये तो pay करना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? Right? So as per this act, the company fixed the revenue on an annual basis. The zamindars, meaning the landlords, जिसकी जमीन थी वो, they were given the permanent rights of land and revenue collection. This is how a class of landlords loyal to the company was created. Loyal meaning honest, wafadar. Underline the word loyal and write the meaning honest. Okay. Now what happened that suppose if I am a zamindar,
and I am having this much piece of land. तो मैं तो जमींदार हूँ, आई एम अ रिच पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू डू खेती बाड़ी ओवर देयर, है ना, मैं तो फार्मिंग नहीं करूंगी. तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड माय लैंड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. Okay, and I will hire the farmers to do the agricultural work. मतलब this area I will give to farmer A, this I will give to farmer B and this I will give to farmer C. ये पूरी जो लैंड है वो है लैंडलॉर्ड की या तो जमींदार की. ओके, एंड एट द टॉप वी हैड द ब्रिटिशर्स. अभी जगह ने इसलिए लिख रही हूँ नीचे, लेकिन ब्रिटिशर्स वर एट द टॉप. ओके, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो जमींदार से उनको ड्यूटी दे दी कि आपकी लैंड में जो ABC काम कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना? आई होप आई एम ऑडिबल. ओके, सो जमींदार्स वर गिवन द ड्यूटी कि ये जो आपके फार्म में ABC फार्मर्स काम कर रहे हैं, उनके पास से एवरी ईयर यू कलेक्ट 8% ऑफ रेवेन्यू. प्रोडक्शन हो के ना हो, रेनफॉल हो के ना हो, लैंड फर्टाइल हो के ना हो, वट एवर इज द रीजन, एवरी ईयर यू कलेक्ट 8% ऑफ द रेवेन्यू. ठीक है, उसमें से आउट ऑफ 8% 6.5% आप ब्रिटिशर्स को मतलब हमें दे दोगे. ओके, सो फार्मर्स विल गिव द रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलॉर्ड्स विल सबमिट द रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स. तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को 6.5% एवरी ईयर परमानेंट मिलेगा, लैंडलॉर्ड्स को 1.5%. 8 में से 6.5 दे दिया तो 1.5 बच गया ना. तो लैंडलॉर्ड्स को 1.5% फिक्स्ड इनकम मिलेगी. प्रॉब्लम किसको होगा? यस, प्रॉब्लम होगा ये ABC को. So now what happened? Just wait, beta. So now what happened? That this landlord or zamindars and Britishers, they came into one team. They came into one group, and the farmers were exploited. तो अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स की जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी. और क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से लैंडलॉर्ड्स को फिक्स्ड इनकम मिलता था, सो लैंडलॉर्ड्स वर वेरी मच ऑनेस्ट टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी लॉयल्टी, और प्रॉब्लम आएंगे ये कॉमन पीपल. ओके, दिस वाज द कंडीशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. समझ में आ रहा है ये एक्ट क्या था? Okay, so there were now 3 types of people: the farmers, the zamindars, and the Britishers. Britishers got the fixed income, zamindars also got the fixed incomes. So they were friends together, they were loyal to each other. और Britishers को क्या benefit हुआ कि ये जो Indians है, one particular part of Indians, they were now in support to the Britishers. अब ब्रिटिशर्स को सिर्फ डर था इन लोगों का कि ये लोग शायद फाइट ना करें, पर इन लोगों में तो उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करें, बिकॉज दे देमसेल्व्स वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. अब ब्रिटिशर्स को तो कहाँ वो लोग अगेंस्ट करेंगे. समझ में आ रहा है? आई होप आई एम क्लियर. यस, सो इससे क्या होगा कि काम करेंगे ये, एक्सप्लॉइट होंगे ये, और बेनिफिट मिलेगा इन दोनों को. दिस इज व्हाट इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. ओके, यस. नाउ राधिका वाज हैविंग द डाउट. यस राधिका. Okay, so as per this act, the company fixed the revenue on an annual basis. The zamindars were given the permanent rights of land and revenue collection. This is how a class of landlords loyal to the company was created. This act also ensured the income of the company. You know what is ensure? Sure में से आता है ensure, मतलब it was fixed कि company will get a fixed income. Against this, the peasants meaning farmers. Against this, the farmers who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited.
जो काम करता है वो परेशान होगा और जो काम नहीं करता है उनको रेगुलर इनकम मिलेगी. दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. डू यू अंडरस्टैंड द एक्ट प्रॉपरली? Okay. Now in the next page, first of all you can see the pictures given to you. Impoverished peasants. Impoverished मतलब पुअर हो जाना. पहले ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन जब आप धीरे धीरे पुअर 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 होते जा रहे हैं उसको बोलते हैं इम्पुअरिश्ड. ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट द मीनिंग ओवर हियर. इम्पोवरिश्ड मीन्स टू बिकम पुअर. पहले ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन अब ब्रिटिशर के पॉलिसी के वजह से दे हैव एम्पोवरिश्ड देमसेल्व्स. एंड यू कैन आल्सो सी द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस. कैसा दिखता था वो अभी हमें पता चल गया है ना. ओके, नाउ कम्स द इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ. सोशल लाइफ मींस द सोसाइटी. सोसाइटी में कॉमन पब्लिक की हालत क्या थी? लेट अस सी. Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as the collector. Now there was one more governor जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स. इसको सर्कल कर दो ताकि हमें ये निशान याद रह जाए. और आगे के पेज में कॉर्नवालिस को भी सर्कल कर देना. लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन. ओके, नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स को ऊपर कंपनी की तरफ से टास्क दिया गया था टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द जमींदार्स. मतलब फार्मर्स के पास से लेंगे लैंडलॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड के पास से लेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स. एंड सो ही वाज नोन एज अ कलेक्टर. समझ में आ रहा है? यस. ओके, ही ऑल्सो ऑफ अ जज. जहां जहां पर भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाता है, एंड इन केस इफ देर आर एनी डिस्प्यूट्स, इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, देन ही यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आल्सो. यू नो व्हाट जजेस डू. Okay, the British system of administration destroyed our ancient system of self rule. Ancient system, पुरानी हमारी क्या सिस्टम थी कि we used to give the revenue. पहले भी देते थे हम किंग्स को, लेकिन किंग्स क्या करते थे? They used to measure the land, they used to see the fertility of the land, and based on that the revenue was collected. और अगर आपके घर में कोई शादी वादी का फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और अगर आप किंग को रिक्वेस्ट करोगे दिस ईयर आई वोंट बी एबल टू पे द रेवेन्यू, तो किंग्स माफ भी कर दिया करते थे. बट दिस सिस्टम वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. नाउ अवर सेल्फ रूल, हमारा पुराना सिस्टम डिस्ट्रॉयड. इन द एंशियंट एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. हर एक विलेज का एक खुद का हेड होता था. यू माइट हैव हर्ड द वर्ड सरपंच. यस, आपको पता है सरपंच द हेड ऑफ द विलेज. तो सरपंच खुद अपने विलेज के लिए रूल्स बनाते थे, वो खुद रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ही वाज नॉट सो क्रूअल लाइक द ब्रिटिशर्स. ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर विलेज. ग्राम पंचायत लॉज भी बनाएगा, उसको फॉलो भी करवाएगा, पनिशमेंट भी देगा, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा, प्लस रेवेन्यू विल आल्सो बी कलेक्टेड. एवरीथिंग वाज डन बाय द ग्राम पंचायत. These panchayats were like the backbone of the self-rule in our country. You know what is the backbone? Do you know what is the backbone? Yes. And do you know that what happens if your body does not have or has the इंजर्ड बैकबोन? अगर बैकबोन में इंजरी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं आपको पता है ना. आप बैठ भी नहीं सकते, आप चल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, यू कैन नॉट, पूरे दिन पड़ता है, व्हील चेयर में बैठना पड़ता है. ओके, सो यू नो ऑफ द बैकबोन, राइट? सो दिस पंचायत सिस्टम, दिस सर्व्ड टू बी द बैकबोन. वो पूरे कंट्री में छोटे छोटे विलेजेस, हर एक विलेज में ग्राम पंचायत थी, तो पूरा कंट्री वाज एडमिनिस्टर्ड वेरी नाइसली. एंड ब्रिटिशर्स ब्रोक दिस सिस्टम. ओके, these institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasions and the Sultanate period. Foreign invasions, invasion meaning attack. Underline the word invasions and write the meaning attacks.
मतलब मोहम्मद गजनी आया था, मोहम्मद घोरी आया था, याद है आपको सब लोग? इन सबको जानते हो ना आप लोग? यस। तो उस टाइम पे भी अवर ग्राम पंचायत डिड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड इवन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द खिलजीज, द तुगलक्स, द सईद्स, वो लोग भी आए थे, बट इवन देन अवर ग्राम पंचायत सिस्टम वॉज इंटेक्ट, वो अपना काम उसी तरह से करते थे। ओके, सो these local institutions stood their ground even during the times of foreign attacks and the Sultanate period, but were destroyed totally due to the administrative policies of Britishers. जब से ब्रिटिशर्स आए हमारा पूरा जो एंशियंट सिस्टम था इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. Okay, the policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. Suspicious meaning doubtful. Underline the word suspicious meaning doubtful. Okay, so we know that during the revenue collection the Britishers destroyed our farmers. लेकिन कोई कोई गवर्नर जनरल ऐसे भी थे, जैसे हमने कॉर्नवालिस लर्न किया, वॉरेन हेस्टिंग्स लर्न किया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए. तो उसमें से कोई कोई गवर्नर जनरल्स ऐसे थे हु डिड सम गुड फॉर आवर कंट्री, वो हमारे अच्छे के लिए, जैसे उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस बंद करवा दिए, सती प्रैक्टिस बंद करवा दिया, फिर हमारे कंट्री में रेलवे लाइन स्टार्ट कर दी, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया. तो अच्छे वाले लोग भी थे, भले कम थे लेकिन थे. बट व्हाट हैपेंड, द Indian people did not trust the Britishers. They looked with a doubt, they looked with a suspicion कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, ये लोग कुछ अच्छा करने वालों में से है नहीं. समझ में आ रहा है? राइट, कि देखो जैसे वी नो दैट सिंस सो मेनी इयर्स, सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हमारे कल्चर में सिस्टम था दैट व्हेन अ हस्बैंड डाइज द वाइफ इज बर्न्ड अलाइव, सती सिस्टम. ठीक है, अब हमारे इतने पुराने सिस्टम को, इतने पुराने कल्चर को ब्रिटिशर्स ने करवा दिया बंद. तो was this a positive reform by the Britishers or negative? Obviously positive. जो मरने वाला था वो मर गया, उसके पीछे जिंदा को क्यों जला रहे हो? तो उनका अच्छा काम था. लेकिन हमें लगा कि ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे, हमें हिंदुइज्म में से इस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा देंगे, हमारी सब ट्रेडिशंस है वो बंद करवा रहे हैं. फिर दे ऑल्सो स्टार्टेड स्कूल्स इन इंडिया. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी स्टार्ट किए, तो भी लोगों को प्रॉब्लम था कि देखो हमारे कल्चर को, हमारे लैंग्वेज को वो हार्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. राइट, सो Britishers had made such a bad impression on the minds of the people that even when they used to do any reforms, the people look at them with insecurity and suspicion. I hope you can understand, all of you. Okay, let's continue. So the policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. हमारी सब प्रथाएं बंद करवा के वो हमारा रिलीजन खराब कर देंगे एंड हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे. People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and military. Deliberately means intentionally, ये लोग जानबूझ के कर रहे. And undermine means to disturb. वो हमारे एक के बाद ट्रेडिशंस इसलिए बंद करवा रहे हैं क्योंकि वो जानबूझकर हमारा कल्चर खत्म करना चाहते हैं. ओके, सो राइट द नेक्स्ट टू मीनिंग्स गिवन. जस्ट अ मिनट, पेज चला गया. First one is deliberately. Underline the word deliberately. Another meaning intentionally. And undermined meaning disturbed. So people thought that they are intentionally, जानबूझकर they are
disturbing our culture. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. Ab Agra, you know about Agra? It is a very famous city in India because of ताजमहल, राइट? तो आगरा में एक ऐसा रूल बनाया दैट वेन एवर एनी इंडियन दे सो अ ब्रिटिशर वो सैल्यूट करेंगे, सलाम साहब ऐसा, ठीक है? So an order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and was liable for punishment. Liable मतलब responsible. अगर कोई ब्रिटिश वहां से निकला और आपने सैल्यूट नहीं किया तो यू विल बी पनिश. अब ये तो दादागिरी हो गई. यस और नो? ओके, सो द पीपल, अब ऐसे लोग हाँ मारते थे, जेल में डाल देते थे, या उनकी कोई चीजें ले लेते थे. ओके, अब अगर आप कोई भी ब्रिटिशर को आप नहीं दोगे, आप सैल्यूट करोगे, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी, मार मिलेगा. नाउ जस्ट इमेजिन कि ऐसे लोग अगर हमारे कंट्री में रेलवे लाइन स्टार्ट भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए, तो विल वी ट्रस्ट देम? विल वी ट्रस्ट देम? नो, नेवर. क्योंकि हमें पता है कि ये लोग पहले से अच्छे नहीं है. अब 10 लोग बुरे हैं और बीच में एक अच्छा आ भी जाता है तो वी विल नॉट ट्रस्ट देम. ओके, सो इफ इट वॉज नॉट डन, अगर ये नहीं भी होता है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम एंड वॉज लायबल फॉर पनिशमेंट. यू विल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट सैल्यूट. हाँ, थोड़ी ही होता है मतलब नहीं होना चाहिए, बट वो करते थे, राइट? एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड ट्रेड. वो तो हमने पूरा जर्नी तो देखा कि कैसे उन्होंने किंग्स के साथ चीटिंग किया, कैसे एग्रीमेंट साइन करवाई. नॉट एक्चुअली, not actually Aurangzeb, it was Jahangir. First time when the Britishers got was Jahangir, right? Okay, so due to this, what happened? There was, yes, there was a there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. Sentiment मतलब feeling. Indians के अंदर क्या feeling थी? A feeling of anger and hatred. You know what is to hate, है ना? So now the people, yes, the people hated the Britishers. They were angry with them. ओके, तो ये तो हो गई फार्मर्स की बात कि ब्रिटिशर्स ने कैसे एग्रीकल्चर को, कैसे फार्मिंग को डिस्ट्रॉय किया. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. नाउ ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्ट्रॉय अवर इंडस्ट्रीज. यू नो द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? यस, तो ट्रेड, एग्रीकल्चर तो पूरा खराब कर दिया. नाउ लेट्स सी ट्रेड को क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ. द हैंडलूम ऑफ इंडिया, हैंडलूम मीनिंग द क्लॉथ इंडस्ट्री. ओके, मतलब हैंडलूम इज अ टाइप ऑफ अ मशीन, जो मशीन में क्लॉथ बनता है ना. उस टाइम पे इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं थे. अगर आपने शायद देखा हो तो, और आपको पता हो कि वुडन मशीन, एक वुडन मशीन होता है जिसको चलाते थे, और वो पैर से चलाने में वो जो अंदर का व्हील घूमता था, और उसमें क्या होता था कि थ्रेड में से क्लॉथ बनता था, राइट? यू माइट बी नोइंग कि कॉटन, कॉटन में सब सीड्स निकाल के व्हेन कॉटन यू कॉटन, जो गांधी जी करते थे कॉटन. हाँ, यस. तो जब कॉटन स्पिन करते थे तो उसमें से थ्रेड बनता था, और फिर वो थ्रेड में से बनाते थे क्लॉथ. So the machine which made cloth from the thread was known as handloom. Okay, so the handlooms of India supplied textile to the markets of Asia and Europe. Textile मतलब कापड़, वो तो आपको पता होगा, cloth. Okay,
अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हो। यस, अगर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो टेक्सटाइल मीनिंग क्लॉथ। क्लॉथ कपड़ा नहीं, क्लॉथ मतलब कापड़। यू नो द डिफरेंस बिटवीन कपड़ा एंड कापड़, राइट? ये शादी का व्हाट इज योर डाउट? Actually, the kings were so weak. The kings were not so powerful. Kings का क्या था कि they were busy fighting internally. आपको पता है राजपूत में हमने लर्न किया था the kings used to fight internally. बिहार और चोलास के बीच में फाइटिंग थी, पल्लवास और राष्ट्रकूटास के बीच में फाइट कर रहे थे। तो ब्रिटिश took the advantage and they started the policy of divide and rule. ये भी मैंने आपको समझाया था what is divide and rule. Okay? So what happened that the kings they were busy fighting internally with each other. Britishers took the advantage. Plus, अगर कोई king person है भी, तो that king did not have such modern weapons and trained army. जब हमारे किंग स्वॉर्ड से और बो एंड एरो से फाइट कर रहे थे तब ब्रिटिशर्स हैड गन्स, राइफल्स, कैनन्स एक्सेट्रा, राइट? सो वहां पर हम थोड़े उनसे बैकवर्ड थे। समझ में आ रहा है? Okay, have you written the meaning? Okay. So the handlooms of India supply textile to the markets of Asia and Europe. Asia and Europe मतलब हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते थे। अब आप समझ सकते हो कि एक्सपोर्ट करना मतलब हम कितने ज्यादा डेवलप्ड होंगे कि we used to export the things. Okay. The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. Commodities means things, items, products, whatever. Yes, goods. तो भी आप लिख सकते हो कमोडिटीज मतलब प्रोडक्ट्स, मतलब यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में से, अलग अलग मतलब फ्रांस, पोर्टुगल, हॉलैंड। तो ऑल दीज पीपल दे यूज्ड टू कम टू इंडिया टू परचेज द प्रोडक्ट्स। The Indian trade, the Indian made jute, silk, woolen and cotton textiles were in high demand in the European markets. कौन कौन से कापड़ थे? Woolen cloth, cotton cloth, silk cloth, jute cloth. I think you know all these materials. Yes, the soft and delicate muslin of Dhaka. Muslin is again a cloth. Now ये muslin के बारे में I will explain you in the next lecture. Okay?